Good morning, student. So today we will discuss about the next part of the chapter, that is earthquake. So far we have learned about lightning, thunderstorm, electric charge, and how to do's and don'ts during thunderstorm. Then we will talk about earthquake. Before moving to this topic, let us understand about the internal structure of earth, which are the factors due to which the earthquake is caused. We all know what is earthquake. Earthquake is a sudden vibration or movement of earth crust caused by natural or man-made forces. When earth is having vibration, है ना, अचानक से जमीन हिलने लगेगी, पूरा ये obviously we are on earth, so हर चीज हिलेगी. The classroom, the tiles, the book we have. Like right now, if I'm shaking, everything on my hand or in my body will shake. Same way, when there is an earthquake, there is a sudden, we can say, movement, shift or vibration on the earth crust or on the earth lithosphere, and this is known as earthquake. But ये earthquake क्यों होता है, और इस चैप्टर और इस टॉपिक में हम आगे पढ़ेंगे कैसे हम earthquake को मेजर कर सकते हैं and ये किस फैक्टर से होता है. Before moving to that, let us understand about the structure of earth. We all know the planet Earth is known as geosphere. Thus, it has lithosphere, land and rocky part. It has oceans, body, hydrosphere, and all the living component is known as biosphere. But dear students, Earth is having outer crust, then it has lithosphere, and it has mantle layer, and it has core layer. तीन लेयर हमें याद रखना चाहिए. फर्स्ट इज क्रस्ट लेयर विच इज लिथोस्फीयर एंड अपर मेंटल. क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, तीन लेयर याद रखना है. फर्स्ट अबो लेयर इज नोन एज क्रस्ट, दैट इज लिथोस्फीयर लेयर. देन वी हैव मेंटल लेयर. इट इज बिलीव्ड टू बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल लेयर. देन वी हैव कोर लेयर. इट हैज अगेन आउटर कोर एंड इनर कोर. Outer core and inner core. Outer core, okay. So crust, mantle, outer core, inner core. Even mantle is having upper mantle and lower mantle. Now this would be the radius. Inner core is actually solid. Compressed height, the inner core, the radius of the earth would be having, the inner core would be having solid compressed iron and nickel, and the outer core is having liquid iron, molten iron and nickel, the outer core. So inside, for example, when we are talking about earth's surface, the earth's surface is crust, mantle, core. Crust, mantle, core. Now I'm talking about the inner core, which is the center of earth. Inner core, that is the center of earth, is having highly compressed solid iron and nickel. Then outer core, it is having high, we can say, a liquid iron which is flowing liquid iron and nickel. That's called, it is formed by outer core. And then we have mantle. Mantle is having magma, we can say lava. Okay, mantle, that's in the lower mantle. And then we have upper mantle, which is soft rocks, and then we have lithosphere crust layer. So when I say lithosphere, I mean crust and upper mantle layer. Okay, now let us understand about the phenomena of earthquake. So dear students, our earth's surface, that is lithosphere, is having tectonic plates. इसको अच्छे से समझना है हमें कि अर्थ का जो लैंड है, कॉन्टिनेंटल लैंड हो, जैसे कि ये जो जमीन है हमारी, वो एक लिथोस्फीयर का पार्ट है. फिर ओशंस के अंदर जो जमीन आएगी, ओशंस के डेप्थ में जाओगे तो जमीन आएगी, तो उसको कहेंगे ओशनिक क्रस्ट. तो अर्थ के आउटर सरफेस पे जो जमीन है, लैंड सरफेस की, वो लिथोस्फीयर में आएगा. और जो ओशंस का जो डेप्थ, ओशन का जो वी कैन से सरफेस है एकदम डीप डाउन, उसमें एक सरफेस, वो पूरा अर्थ का, कॉन्टिनेंटल का, लैंड का क्रस्ट और ओशन का क्रस्ट,
ये पूरा फॉर्म कर रहा है अर्थ का लिथोस्फीयर। नाउ ये जो लिथोस्फीयर है इसके नीचे एक मेंटल लेयर है और मेंटल लेयर जो लोअर मेंटल लेयर है वो मैग्मा लावा से भरा है, वो बहुत ही हॉट है और उस हॉटनेस की वजह से ऊपर का एक लेयर फ्लोट होने लगता है। तो अर्थ का जो पूरा लैंड सरफेस एरिया है उसके नीचे एक बहुत ही हाई एनर्जी वी कैन से हीट की वजह से है ना, रॉक मेंटल लेयर बहुत ही गर्म हो चुका है और ये एक पूरी सरफेस जो है वो बहुत सारे हिस्सों में डिवाइडेड है। जैसे कि एक लैंड नहीं है, 15-20 प्लेट्स होगी वी कैन से। तो फर्स्ट आउटर लिथोस्फीयर जो है उसके नीचे मेंटल जो बहुत ही गर्म है और उस गर्म की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से अपर लिथोस्फीयर के अंदर 15-20 प्लेट्स है। मेजर हम बोलते हैं उसको 7 टेक्टोनिक प्लेट्स। जैसे कि टेक्टोनिक प्लेट्स के नाम है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स, जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया और पूरा रीजन को इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स, देन नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स, साउथ पैसिफिक साउथ वी कैन से साउथ अमेरिकन प्लेट्स, देन यूरेशियन प्लेट्स। ये जो लिथोस्फीयर की प्लेट्स जो है वो एक दूसरे में टकराती है। अब वो फ्लोट क्यों करती है? जो जमीन का एरिया है वो फ्लोट क्यों करता है? बिकॉज नीचे एक उबलता हुआ बहुत ही हॉट मैग्मा लावा मेंटल में है और वो गर्मी के कारण ऊपर के एरिया उस गर्मी में फ्लोट करता है। अब ये पूरा जो एरिया है अर्थ का वो पूरा एक सिंगल लैंड नहीं है, वो बहुत ही 15-20 हिस्सों में अलग अलग टूटा हुआ है जिसको हम बोलते हैं प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स। तो ये जो एरिया है वो बहुत ही स्लो मोशन में कभी टुवर्ड्स कभी अवे कभी इंटरलॉक हो जाता है। ऐसा भी होता है कभी एक दूसरे के साथ इंटरलॉक हो जाता है और कभी कभी वो टुवर्ड्स जाता है और ये टेक्टोनिक प्लेट्स फ्लोट होती रहती हैं। बट व्हेन देयर इज एन एक्सट्रीम प्रेशर फ्रॉम द इनसाइड फ्रॉम मॉडर्न लावा और इंटरलॉक होने की वजह से और उसको एक्सट्रीम प्रेशर होता है, नीचे से हीट आ रही है और तो एक एपिसेंटर क्रिएट होता है, एक अर्थक्वेक का रीजन स्टार्ट होगा। जमीन लिथोस्फीयर जो है अर्थ का लिथोस्फीयर हो और ओशन का क्रस्ट हो वो पूरा एक टेक्टोनिक प्लेट्स है। ऐसी बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट्स है। इंडिया ऑस्ट्रेलियन टेक्टोनिक प्लेट है, पूरा इंडियन ओशन की जमीन हो जाए, इंडिया की जमीन हो जाए, ऑस्ट्रेलिया की जमीन हो जाए, तो ये एक टेक्टोनिक प्लेट है। इसके नीचे फिर सेम वे अमेरिका के नीचे नॉर्थ अमेरिकन टेक्टोनिक प्लेट्स, ये प्लेट्स आपस में टकराती रहती है, फ्लोट करती रहती है, वो मेंटल में फ्लोट कर रही है। और ऐसी डिफरेंट 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, वो बहुत वर्षों से फ्लोट कर रही है, कभी इंटरलॉक हो जाती है, कभी टुवर्ड्स जाती है और बहुत स्लोली मूवमेंट वो इससे और टेक्टोनिक प्लेट होने की वजह से वो इंटरलॉक हो रही है और ये होना जरूरी भी है। बट व्हेन देयर इज एन इंटरलॉक एंड देयर इज अ ह्यूज प्रेशर इनसाइड, सो इट क्रिएट्स एन अर्थक्वेक, इट क्रिएट्स अ वेव, इट क्रिएट्स अ एनर्जेटिक वेव्स एंड इट क्रिएट्स अ क्रैक ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। और फिर बाद में वो जो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे में इंटरलॉक हो जाती है, फिर एक्सट्रीम प्रेशर जनरेट होता है और वो फिर इससे अर्थक्वेक होता है। इसको बोलते हैं वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के काफी सारे फैक्टर है। वन ऑफ द फैक्टर इज टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट। वन ऑफ द फैक्टर इज टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स which we are going to see. So earth has solid inner core, obviously solid outer core surrounded by mantle, outer core surrounded by mantle layer where magma is stored. So as I told you, earth के पास एक inner core है जो solid है और outer core है जो liquid है। उसके बाद mantle layer है जो lower mantle layer है, उसमें magma होता है। It is a highly, you can say, it's like a lava. Obviously, it's having high temperature. Now, earthquake, any sudden vibration or movements of the earth crust caused by natural or man-made forces. सब कभी ऐसा भी होता है कि हम ड्रिलिंग कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं या हम न्यूक्लियर एक्सप्लोर कर रहे हैं, उससे भी टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर से earthquake कॉज होता है। नेचर तो होता ही है, बट man-made force से भी earthquake, shaking और trembling हो सकता है। Now, what is hypocenter? जो रीजन पे जो पॉइंट में अर्थ के जो पॉइंट में अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ है उस पॉइंट को कहते हैं हम सिस्मिक फोकस, साइस्मिक फोकस कहेंगे उसको या तो हाइपोसेंटर कहेंगे। जिस पॉइंट से अ पॉइंट ऑफ द क्रस्ट और द प्लेट that will start which origin the we can say earthquake, जो पॉइंट से earthquake स्टार्ट हुआ है, जो पॉइंट से ये अर्थ का फटना स्टार्ट हुआ है, उस पॉइंट को हम बोलेंगे हाइपोसेंटर, साइस्मिक फोकस और साइस्मिक ओरिजिन। द हाइपोसेंटर, द पॉइंट
or the crust or the mantle or the plate where the sudden shift of rocks take place is called seismic origin, seismic focus और hypocenter। तो जिस पॉइंट पे शिफ्टिंग स्टार्ट होती है, जिस पॉइंट पे रॉक्स एक दूसरे से टकरा रहे हैं या अर्थक्वेक स्टार्ट हो रहा है, जो पॉइंट पे अर्थक्वेक स्टार्ट हो रहा है उसको कहते हैं seismic origin और seismic focus और hypocenter। Okay, now you go here, if there is, this is called for example seismic focus। अगर ये seismic focus है तो हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे अर्थ की सरफेस पे। मान लो अर्थ के अंदर अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ, अर्थ के एक मेंटल लेयर में या कहीं पे भी लिथोस्फीयर के डीप डाउन एक पॉइंट पे अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ, उस पॉइंट को कहेंगे हाइपोसेंटर। उस पॉइंट से लेकर सरफेस तक की जो लाइन बना देंगे एग्जैक्ट, द लाइन अबव द वी कैन से हाइपोसेंटर इज कॉल्ड एपिसेंटर। अब नीचे स्टार्ट हुआ था बट ये सरफेस तक जो ले जाएगा इसके एग्जैक्ट परपेंडिकुलर पे जो सरफेस पे पॉइंट खुलेगा उसको कहेंगे एपिसेंटर। एपिसेंटर द पॉइंट डायरेक्टली अबव द seismic focus। अगर जिस पॉइंट पे अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ है उसको हम कहेंगे seismic focus and the point directly above the seismic focus which is other crust and earthquake, the point directly above the seismic focus of the earthquake where the shock waves reaches above the earth crust। यहाँ पे भी पॉइंट स्टार्ट हुआ है इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये पॉइंट को कहेंगे एपिसेंटर और ये होगा हाइपोसेंटर। So the point directly above the seismic focus of an earthquake where the shock waves reaches above the earth crust is called epicenter। और जो waves जा रही है एनर्जी दरार वाली उसको कहेंगे shock waves। The waves generated in the lithosphere due to the sudden shifting of rocks is called shock waves। तो earthquake के कारण जो तिरार पड़ रही है, जो शॉक जा रहा है, तो बहुत ही दूर दूर तक एनर्जी से वो तिरार चली जाती है, उसको हम बोलते हैं शॉक वेव्स बोलते हैं। जो रॉक को शिफ्ट करती है उसमें तिरार लाती है, शॉक वेव्स। What is seismograph? Seismograph is an instrument which detects and measures and records the seismic intensity, that is the intensity of seismic waves generated by an earthquake is known as seismograph। seismograph एक इंस्ट्रूमेंट है जो earthquake को डिटेक्ट करता है कितना हुआ कैसे और उसको उसकी इंटेंसिटी कितनी थी, कितनी पावरफुल था, उसको कहेंगे हम seismograph is an instrument which detect and measure the intensity of seismic waves। Seismology, the branch of science which deals with the study of earthquake। जो भी स्टडी ऑफ अर्थक्वेक के बारे में करेंगे, टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में करेंगे या उसकी डेट करेंगे, उसको कहेंगे साइस्मोलॉजी। और जो साइंटिस्ट है उसको कहेंगे साइस्मोलॉजिस्ट, जो अर्थक्वेक के बारे में पढ़ते हैं। अर्थक्वेक कैसे होता है? एक होता है वोल्केनिक इरप्शन, तो वोल्केनो में बहुत ही ज्यादा वाटर लावा, तो वो भी एक टेक्टोनिक प्लेट्स को क्या करेगा, पुश करेगा। तो वोल्केनिक इरप्शन जहां भी होते हैं वहां अर्थक्वेक बहुत बार पाया जाता है। सो यू माइट हैव हर्ड अबाउट वी कैन से एक्टिव वोल्केनो, पैसिव वोल्केनो। तो जहां पे एक्टिव वोल्केनो होते हैं वहां पे बार-बार अर्थक्वेक आते रहते हैं। सेकंड इज प्लेट टेक्टोनिक्स। एज आई टोल्ड यू, प्लेट टेक्टोनिक्स, टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से ऑलरेडी प्लेट्स तो मूवमेंट कर ही रही है, बट कभी-कभी ऐसा होता है कि ज्यादा वी कैन से प्रेशर आने के कारण वो टेक्टोनिक प्लेट्स में अर्थक्वेक कॉज होता है। फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग। फोल्डिंग क्या होता है कि जैसे कि कच्छ ले लो, कच्छ में अर्थक्वेक आया था, तो जहां पे ज्यादा अमाउंट का अर्थक्वेक आके एक तिराड़, एक क्रैक आ जाती है, फिर वहां पे बार-बार वी कैन से अर्थक्वेक आने के चांसेस हो जाते हैं। यू माइट हैव हर्ड अबाउट अर्थक्वेक प्रोन जोन। प्रोन मतलब जहां पे ज्यादा बार-बार होने के चांसेस है, तो उस जगह पे जो फॉल्ट लाइन क्रिएट होती है, जो क्रैक क्रिएट होती है अर्थ में, है ना, तो उस क्रैक को हम बोल सकते हैं फॉल्टिंग। और उस फॉल्टिंग के कारण हो सकता है वहां पे बार-बार इजीली वी कैन से अर्थक्वेक आ जाए, उसको कहेंगे फॉल्टिंग। थर्ड है एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर, फोर्थ वन। एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन फैक्टर्स, जैसे एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन फैक्टर, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स ड्रिलिंग करते हैं, माइनिंग करते हैं, खुदाई करते हैं, कोल है ना, कोल्स के लिए, डायमंड्स के लिए, या अलग-अलग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करते हैं अंडर द ग्राउंड। तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से भी क्या होगा, अर्थक्वेक कॉज होगा, बिकॉज़ इट विल क्रिएट अ हाई अमाउंट ऑफ we can say energy which can create the shock waves in the tectonic plates and may result in earthquake। So these are the some reasons for earthquake। magnitude of earthquake, कि earthquake कितनी पावरफुल था, इंटेंसिटी कितनी थी, कभी सुना होगा 3 की, तो एक अगर होता है तो हमको पता चलता नहीं है ना, 2 होगा, पर 3 4 कभी आपने सुना 4 मैग्नीट्यूड का earthquake था,
है ना। तो उसके लिए एक स्केल होती है जिसको बोलते हैं रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल इज अ वी कैन से व्हिच मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। तो कभी 6 इंटेंसिटी का होता है ना रिक्टर स्केल, मेजर करेंगे इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक 4 मैग्नीट्यूड का था, 5 का था, तो 4 और 5 बहुत ही वी कैन से डिजास्टर होते हैं। और 7 मैग्नीट्यूड का होगा तो बिल्डिंग ही टूट जाएगी। सो नॉर्मली अगर 1-2 मैग्नीट्यूड का होगा तो इतना पता चलता नहीं है, बट 3, 4 और 5 तो जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतना उसका डिजास्टर इफेक्ट होगा। एंड इफ यू रीड एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी and you can take screenshot, and again we'll discuss this topic on Google Meet.